अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। As you know that in the previous lecture we were able to determine the roots of a quadratic equation by using completing square method, and also after finding the roots of a quadratic equation by using completing square method we were able to determine the sum and product of roots. That is x equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac divided by 2a, or we can write it as x equals to minus b plus root of b square minus 4ac divided by 2a, and x equals to minus b minus root of b square minus 4ac divided by 2a. After that, after determining these roots, but we were able to find the sum and product of roots, and the sum of the roots was minus b by a, that is minus into quotient of x divided by quotient of x square, and product was alpha into beta, that is c by a, that is constant term divided by quotient of x square. Shabash. Now we have to use this completing square method, and in exercise number 4 point, this is exercise number 4.3, and question number 1 states that find the roots of a quadratic equation, given quadratic equation by using completing square method. And बेटा आप जानते हो कि कल जब भी जो भी हमने completing square method किया था, तो उसमें we were suppose या हमने क्या काम किया था, we followed certain steps, हमने कुछ steps follow किए थे वहाँ पे, और same in order to find the roots of a quadratic equation, और वही steps हमने आज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे पास अब इक्वेशन दी गई है 2x स्क्वायर minus 7x plus 3 equals 0. This is question number 1 of exercise 4.3. Find the roots of a quadratic equation. The equation is 2x square minus 7x plus 3 equals to 0 by using completing square method. That is, हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर minus 7x plus 3 equals to 0. तो पहला वाला जो स्टेप कल हमने किया था, तो पहला स्टेप क्या है, we have to divide equation या equation on both sides by किससे बेटा, शाबाश, by coefficient of x square, that is यहाँ पे x square का कोफिशिएंट 2 है, we get that is 2x square divided by 2 minus 7 by 2x plus 3 by 2 equals to 0. इसके बाद हमने दूसरा स्टेप नंबर सेकंड क्या किया था, हमने इस वाली टर्म को, दैट जो c की जगह पे कांस्टेंट टर्म है उसको हमने ट्रांसपोज करना है दूसरे स्टेप पर, दैट इज x square minus 7 by 2x equals to minus 3 by 2. क्लियर, शाबाश. अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडिंग above equation, very good, on both sides by square of half of, very good, of coefficient of x, that is यहाँ पे अगर coefficient of x की बात की जाए, that is 7 by 1 half of, तो कोफिशिएंट यहाँ पे 7 by 2 स्क्वायर, यहाँ पे minus 7 by 2 है, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, हम 7 by 2 भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम लिखने में है ही नहीं. शाबाश. On both sides we get, so that is x square minus 7 by 2x plus 1 by 2 into 7 by 2 square equals to minus 3 by 2, very good, plus 1 by 2 into 7 by 2 square. शाबाश बेटा, समझ आया ना, very good. और we can write as x square minus 7 by 2x, clear, plus, very good, 7 minus क्या हो गया, 7 divided by 2 2s 4 square, शाबाश, equals to minus 3 by 2 plus 7 divided by 2 2s हो गया 4, that is 7 minus 7 2 2s 4, और इन दोनों का स्क्वायर है. वेरी गुड. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी फॉर्म हो जाती है, दैट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. वी विल चेक क्या यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है या नहीं, उसके बाद हम आइडेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं. शाबाश. और वी कैन राइट इट एज, अगर हम यहाँ पे x को सपोज मान लेते, लेट इट बी a एंड दी 7/4 को हम b के बराबर लेते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी है a स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2, a के बदले हमने क्या लिया x, वेरी गुड, b के बदले क्या लेंगे हम 7/4, वेरी गुड. और इसके बाद यहाँ पे एज पर क्वेश्चन है
7/4 square equals to -3/2 plus 7 7 is 49 divided by 4 4 16। बेटा समझ आ रहा है ना? शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की। फिर से हम चेक करेंगे। देखो बेटा 2 1s हो गया 2 2 2s 2 1s 2 2 2s हो गया 4 दैट इज 7/2x 7/2x। दैट मींस यहाँ पे आइडेंटिटी इस्तेमाल होती है। वेरी गुड। यूजिंग, अब यही आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे। यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर। वी गेट, अब इसके बदले, इस पूरी के बदले, ये जो यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास है, इसके बदले हम a माइनस b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। a एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, a के बदले हम यहाँ पे क्या बेटा लेंगे, क्या लेंगे, शाबाश, यहाँ पे a के बदले x आएगा, x माइनस दिस इज 7/4 b का वैल्यू है स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ 49 2s हुआ 98, वेरी गुड, माइनस 16 3s हो गया 48 डिवाइडेड बाय 16 2s 32, वेरी गुड। Now we can write it as, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is x minus 7/4 square equals to 98 minus 48 हो गया 50 divided by 32, 2 25s 2 16s हो गया 32। Clear? Do you get me? शाबाश। That is x minus 7/4 square equals to 25/16। अब क्या होगा, ये स्क्वायर है तो उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो रूट चला जाएगा, रूट बन जाएगा, तो इसके साथ दो साइड्स होंगे माइनस और प्लस। दैट इज x minus 7/4 equals plus minus root of 25/16। क्लियर? और x minus 7/4 equals to plus minus root of, हमें पता है 5 5 हो गया 25 और 4 4 16 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल। बेटा समझ आया ना? तो यहाँ पे क्या किया हमने, 25 परफेक्ट स्क्वायर 5 हो गया और 16 4 का है, दैट इज 5 5 हो गया 25 4 4 16 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल। तो यहाँ तक समझ आया ना? वेरी गुड, शाबाश। नाउ वी कैन राइट दैट, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बदले, दैट इज x minus 7/4 equals to plus minus 5 divided by 4, शाबाश। और x 7 minus 7/4, यहाँ पे माइनस है, अगर ट्रांसपोज करते हैं इट बिकम्स प्लस, दैट इज x equals to 7/4 plus minus 5/4 और x equals to 7 plus minus 5 डिनोमिनेटर 7 डिवाइडेड by 4। तो दो केसेस यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास। दैट इज, अगर केस फर्स्ट की बात की जाए, यहाँ पे x equals to 7 प्लस, केस फर्स्ट अगर हम लेंगे 7 plus 5/4 और केस सेकंड का जहां तक सवाल है तो दैट इज केस सेकंड में हम लिख सकते हैं x equals to 7 minus 5/4, वेरी गुड। दैट इज x equals to 7 plus 5 हो गया 13 divided by 12, 7 plus 5 हो गया 12 divided by 4, दैट इज 4 1s 4 3s, x equals to 3। और यहाँ पे अगर बात की जाए x equals to 2 divided by 4, 2 1s 2 2s, that is x equals to 1/2। Here now the roots of the therefore remaining required roots of quadratic equation, quadratic equation हमारे पास क्या है, 2x square minus 7x plus 3 equals to 0, or by using completing square method, और क्या है 3 and 1/2। These are the remaining roots of quadratic equation by using completing square method। I hope कि देखो, जैसे कि पहले भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ पहले लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में मैं कल आपको बता चुका हूं कि फ्रॉम द एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू इधर डेरिवेशन या ये क्वेश्चन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है ना? एंड आई होप कि जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, दे विल रिमेन द असाइनमेंट पार्ट नंबर 2nd 3rd and 4th। जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आप उनको यही प्रोसीजर करके, यही मेथड अप्लाई करके उनके रूट्स निकालोगे। अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, कहीं पे भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो never hesitate on calling or dialing this number, that is 849201
1905. I am always available there. ठीक है ना बेटा? Hope you all are fine. Thanks.